Question number 16. Yes, sir. Right, let the answer be given. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 10 साल से इस विषय पर काम हो रहा है। Silence, please. मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना है जो नेशनल कॉमन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने के लिए बाधक है, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और दूसरा लैंड टेंडेंसी एक्ट? क्या इसमें संशोधन करने का कोई विचार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का इस बारे में निश्चित रूप से विचार है। चूंकि ये प्रदेशों से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार ने लगातार सभी प्रदेश सरकारों से रिक्वेस्ट की है कि 7 पॉइंट्स केंद्र सरकार की तरफ से गए हैं, जिन पे राज्य सरकार को विचार करके अपने सुझाव देने हैं। पहला पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट यार्ड्स एंड डायरेक्ट परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट यार्ड, establishment of consumer farmer market, provision of contract farming, unified single registration, e-trading, single point levy of market fee। कुछ प्रदेश सरकारों ने लिख के दिया है कि इसको अपने एपीएमसी एक्ट में संशोधन भी किया है, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारों की तरफ से अभी संशोधन नहीं हुआ है। सरकार की मंशा एक नेशनल कॉमन मार्केट बनाने की है। जैसे ही सभी प्रदेश सरकारों की तरफ से इस पर विचार आएंगे, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, अभी किसानों की बात चल रही है। क्या सरकार जो किसानों का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बाजार तक ले जाने के लिए जो असुविधाएं हो रही है, उस असुविधाओं को देखते हुए क्या सरकार किसानों को कोई सुविधा या कोई सब्सिडी देने का विचार रखती है? माननीय सभापति महोदय, एक सुविधा पर सरकार का लगातार विचार है, ई मार्केटिंग। उसके द्वारा अगर किसान अपना सामान कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी वेयर हाउस में रखता है तो ई टेंडरिंग के द्वारा उसकी बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का अभी तक कोई प्रावधान का कोई विचार नहीं है। थैंक यू। श्री रामालिंग। Sir, this is a very important issue, sir. In the minister's answer, in the first paragraph A, the central government has been engaging with the states for more than a decade to implement reforms in the sector. The reforms include development of alternative marketing channels involving greater private sector participation. Sir, agriculture market should not be privatized. If it is privatized, the farmers are treated like bonded laborers, and then black market will be encouraged. The price of agriculture products will be fixed by the corporate sectors. Then the entire nation farmers will be doomed, sir. This is not advisable. What is the question? Sir, the government of India itself, in the recent budget speech, our finance minister has announced in the page number 8, paragraph 33, stated, I quote, while the farmers is no longer in the clutches of the local trades, his produce still does not comment on the national price. Sir, if the... Will you please ask your Yes, question? sir. To increase the incomes of the farmers, it is imperative that we create a national agricultural market. Sir, what happened to that? So in budget speech itself, the finance minister announced it. What is your question? Yes, I am coming to the question, sir. No, please, you have taken too long. Sir, no, sir, it's a very important issue. The national agriculture market has been announced by the budget speech by the finance minister. But instead of that, now the agriculture minister is telling it should be going to be privatized. Then it will be very harm to the farmers. What happened to the national agriculture market scheme announced by the finance minister? How much the budgetary provisions to the states it was given under the national agriculture market scheme, sir? Thank you. मार्केट का जो कंसेप्ट है, मैं माननीय सदस्य को समझाना चाहूंगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। उसके द्वारा हम पूरे देश में 500 मंडियों को सिलेक्ट कर हर मंडी को 30 लाख रुपए देने जा रहे हैं जल्दी ही, जिससे ई मार्केटिंग पूरे देश की मार्केटिंग एक तरह से जुड़ जाए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कंसेप्ट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो उसका एक पार्ट है छोटा सा। उसका कंसेप्ट है कि पूरे देश की एग्रीकल्चर कमोडिटीज ई मार्केटिंग के द्वारा एक साथ उनकी बिक्री की जा सके, वो एक साथ जुड़ सके
सारे प्रदेशों में ई मार्केटिंग शुरुआत की जा सके। कर्नाटक ने इसकी शुरुआत कर दी हुई है, कर्नाटक की तरफ से। कर्नाटक की 52 मंडी में ई मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। उसी पैटर्न पर पूरे देश को एक साथ जोड़ने की योजना केंद्र सरकार की है और जल्दी ही इसकी शुरुआत होने जा रही है। Thank you. Shri Rapolo. Respected Chairman, these are the days of agrarian agony, and the agricultural marketing is gaining e-trading level all across the nation, including my state of Telangana. And the reforms proposed by Union government have been accepted by several states, including my state of Telangana. But as a pilot project on the e-platform model, whether Union government on the way to develop the national market for agricultural commodities, envisaging to first take up the commercial crops like cotton, sugar and other products, so that the new examples can come up to evaluate the total national agricultural market. Thank you, sir. Thank you. माननीय सभापति महोदय, अगर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में एग्रीकल्चर की सभी कमोडिटीज का ध्यान रखा गया है, न कि कॉटन, शुगर, इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सभी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और तेलंगाना ने, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय संसद को, तेलंगाना उन प्रदेशों में है जिन्होंने इन सुधारों की वकालत की है और इसमें सभी फसलें आएंगी, सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी की टेंडरिंग होगी, कॉटन और ये भी उसमें साथ में होंगी। Thank you. Question number 17. The minister has given reply to me. Let the answer be given. विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। Yes, now proceed with your supplementary. Sir, the minister has given the reply that all over the country we have the 73 agriculture university and the total number of the student 2014 is 34,439. My question is this: India is a vast country. Do you think that the number of the agriculture university in the country at present are sufficient? And have you made any investigation for more technically sound universities to be set up in the country, as well as do you think that the old universities are to be modernized at present? Because some of the One question universities, at a time, please. because some of the universities in a very old model, suppose Bidhan Chandra Rai Krishi Vishwavidyalaya in Bengal, it is an old model. Whether government is going to think to modernize all these agriculture universities. Okay. माननीय सभापति महोदय, सरकार का पिछले बजट में ही 4 नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 2 हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को खोलने का, जिसमें से एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना, एक राजस्थान और एक हरियाणा, और 2 नई IRI, जिनमें से एक झारखंड और एक असम पिछले साल सरकार ने अनाउंस की थी। उस पर सरकार का लगातार कार्य चल रहा है। जहां तक पुरानी यूनिवर्सिटीज को मॉडर्नाइजेशन की बात है, चूंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए इसका जो भी इसमें शुरुआत करनी है वो प्रदेश सरकार की तरफ से होनी है। केंद्र सरकार इसमें मदद करती है, ये इनिशिएटिव प्रदेश सरकार की तरफ से होगा। Thank you. Second question. Sir, public sector banks have directed that Financial Literacy and the Credit Counseling Center, FLCCs, in rural areas to guide and urge the farmers to show crops that require the less care and irrigation to control damage in case of insufficient monsoon. Whether the Minister of Agriculture is aware of the decision of this bank, and if so, then what steps the ministry has taken to spread this idea amongst the farmers. Thank you. माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में 641 कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो भी नए ICR के रिसर्च है वो है, उसके द्वारा उसको किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था है। उसके अलावा भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और आत्मा एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके द्वारा जो भी नई रिसर्च या सुझाव है वो किसानों तक पहुंचाने का काम सरकार करती है। Thank you. श्री अविनाश राय खन्ना. सर, इस सवाल के जवाब में जो यूनिवर्सिटीज़ का एक नेटवर्क है सारे देश भर में, वो है कि 73 यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर हैं, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और सेंट्रल
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर एग्रीकल्चर को पढ़ाया जाता है सर। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि आज का नौजवान एग्रीकल्चर में जाने से हेजिटेट करता है, वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाहता। सरकार क्या उपाय करेगी ताकि आप आज का नौजवान एग्रीकल्चर करने के लिए जो उसकी परंपरा है अपने फादर की खेती को करने के लिए, उसके लिए नौजवान भी खेती के लिए जाए, उसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से इसमें 3 इनिशिएटिव पहले से ही मौजूद हैं। शरद पवार जी के समय की ये इनिशिएटिव मैं नहीं कहूँगा कि हमारे समय के हैं। एक स्कीम है, स्टूडेंट रेडी स्कीम है सरकार की। पहले इसमें 1000 रुपये प्रति माह स्टूडेंट को मिलता था वजीफा, अब उसको बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। एक और स्कीम है आर्या स्कीम, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। उसके द्वारा हम 25 कृषि विज्ञान केंद्रों में 4000 स्टूडेंट पर यूथ पर कृषि विज्ञान केंद्र, टोटल 10,000 हम लेंगे पूरे देश से। उनको 1 लाख रुपए प्रति छात्र के ऊपर उसमें खर्च होगा। एक स्कीम ये है। एक तीसरी स्कीम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स। ये भी पुरानी स्कीम है, बहुत पुरानी। ये तीनों स्कीम लगातार चल रही हैं जो यूथ को एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। Thank you. Shri Premchand Gupta. अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का जाल है, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं सर, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई प्रावधान इतना नहीं है और न हमारे सामने इतना कोई रिजल्ट आ रहा है। दुनिया एग्रीकल्चर में और फ्लोरिकल्चर में अगर आप देखेंगे दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। इजराइल जैसा मुल्क सर, जहाँ पर पानी नाम की चीज़ नहीं है और रेत के सिवाय कुछ नहीं है, और उन लोगों ने कितनी डेवलपमेंट की है। तो क्यों नहीं हम अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को मोर टेक्निकली साउंड बेसिस पर इसको डेवलप करें, रादर देन गिव इंक्रीजिंग नंबर्स। अगर भी हमारे यहाँ 73 है और 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और हम 5 और खोलने जा रहे हैं, वो ठीक है, आपकी बात देश के हर हिस्से में होनी चाहिए। लेकिन सर जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्थिति है वहाँ पर वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सर मान्यवर शरद पवार साहब यहाँ बैठे हैं, इनके क्षेत्र में हम लोग गए। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप यूनिवर्सिटी में हैं या बाहर हैं। आप देखिए कि इन्होंने वहाँ पर अपने क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट की है खेती के फील्ड में, फ्रूट्स के फील्ड में। और तो क्यों नहीं हमारी यूनिवर्सिटीज को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाया जाए। Thank you. सांसद ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। शरद पवार जी के क्षेत्र में मैं गया हूं तो मुझे भी ऐसा ही लगा है देख के कि पूरे देश में कम से कम हॉर्टिकल्चर के फील्ड में ऐसा ही होना चाहिए जो उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। ये भी सच है कि जो आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, चूंकि मैं भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, PhD मैंने वहीं से की है, जो रिसर्च का सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है। ICR के इंस्टीट्यूट्स में उससे बेहतर है। इसके लिए लगातार ये भी है, रिसर्च के मामले में जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनको लगातार इतना फंड नहीं मिल पाया, चूंकि ये विषय केंद्र और प्रदेश दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं अपनी तरफ से तो कह सकता हूं कि लगातार प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं कि रिसर्च में बजट कुछ बढ़े, लेकिन चूंकि प्रदेश सरकारों को भी इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो भी बजट का प्रोविजन है वो ज्यादातर प्रदेश सरकार की तरफ से। Shri Parida. नहीं आप सर Premchand ji, now the question is over. Please. No, the question is over. Sir, Please. Sir, Yes. there are a number of agriculture universities in our country, and they are engaged in research work. And as my friends have already mentioned, the level of research is not so high that could be utilized for the purpose of developing the agriculture. But the seeds there in the agriculture for the students are limited. Our country is vast. So is there any plan to introduce agriculture as a subject in the science colleges, where it could be studied as a subject or it can be taken as an honors subject,
So are you thinking in that line? So large number of students could be educated, could be trained of there also in the colleges. In the school education. Not under the agriculture university. So in the school education itself. महोदय, अगर माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, अगर वे व्यक्तिगत रूप से मेरे से पूछें तो मैं इस बात से सहमत हूं कि एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये मैटर प्रदेश सरकारों से और दूसरी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई मिनिस्टर से, HRD मिनिस्टर से बात की थी एक बार लगातार इस बारे में, लेकिन शरद पवार जी ज्यादा समझेंगे। इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इसमें मेरे द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या ये हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। जहां तक सीट बढ़ाने की बात हमने कही है, इस वर्ष हमने वेटनरी कॉलेज जितने भी हैं देश में, उनमें जो एक स्टूडेंट्स की लिमिट थी 60 स्टूडेंट प्रति कॉलेज, उसको बढ़ाकर पहले ही 100 स्टूडेंट्स को, हर कॉलेज में 100 स्टूडेंट इस वर्ष कर दिया। Question number 18. Question number 18, sir. Sir, question is in the table of the house. सर, स्पेक्ट्रम ऊंची कीमतों पर बिना घोटाले से बेचना मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है और इस नीलामी से सरकार को करीब 1.10 लाख करोड़ मिले। उससे जीरो लॉस वाली जो थ्योरी थी पहले की सरकार की, वो गलत साबित हुई। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि इस ऑक्शन का, जो अभी ऑक्शन हुआ है, उस ऑक्शन का असली मकसद क्या था? स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मकसद कंज्यूमर जो है उनको कम रेट पर अच्छी सर्विस, अच्छी सेवाएं देना होता है। लेकिन यहाँ ऑक्शन का जो उद्देश्य दिखता है वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए, उस मकसद से ऑक्शन किया गया। और प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो हमारे देश का सपना है। हमारे देश में लगभग 90 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, 30 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। मेरा सवाल है सरकार से कि ये ऑक्शन से जो आपको रेवेन्यू मिला है, उसे सरकार को तो पैसा मिला है, लेकिन जो लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स है उसको क्या सेवा मिलेगी, ज्यादा सुविधा क्या मिलेगी, उस बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं। सभापति जी, नई सरकार ने बड़े पारदर्शी तरीके से इसको पिछले मार्च महीने से शुरू करके देश के सामने उसको लेके आए हैं। अभी जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि 1,10,00,000 करोड़ की मुनाफा सरकार को हुई है। मैं उसको थोड़ा और विस्तार से करूं। अपफ्रंट हमको 32,000 करोड़ रुपया मिला और आने वाले 10 सालों में सालाना 15,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा मिलके अगर उसको हम टोटल रेवेन्यू कितना मिलता है आने वाले 10 साल में, ये बनके हो जाएगी 1,83,000 करोड़। इसकी एक बड़ी उपलब्धि हुई है। जो इस विरासत में जिस लीगासी इशू हमको मिली थी, उसमें देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि स्पेक्ट्रम में भी ये हो सकता है। ये सरकार ने उसको करके दिखाया। लेकिन सदस्य ने जो एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि उसमें से आखिर ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को और मान्यवर सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, सबसे ज्यादा लाभ ग्राहकों को मिलेगी। स्पेक्ट्रम की दायरा बढ़ाए, नई स्पेक्ट्रम आई है। डिफेंस मिनिस्ट्री से लंबे समय से हमारी बातचीत चल रही थी कि हमको कुछ एडिशनल स्पेक्ट्रम मिले। पिछले 7 साल की विवाद को सुलझाते हुए डिफेंस से एडिशनल स्पेक्ट्रम आया। स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ बढ़ी, सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी। उसके कारण जो ड्रॉप आउट होती थी, अभी भी जो कॉल ड्रॉप आउट, प्रेम जी थोड़ा मेरे को उत्तर दे देने दीजिए, फिर आपकी सप्लीमेंट्री ले लूंगा। अभी जो ड्रॉप आउट होती है, कॉल ड्रॉप होती है, वो कॉल ड्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाका में विशेष करके उसकी सर्विस बढ़ेगी। और दूसरी, जो पहले ये वॉइस ही होती थी पहले टेलीफोन सर्विस की, धीरे धीरे डाटा आई। डाटा की कई प्रकार की नए नए आयाम आया। आने वाले दिनों में सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, भारत की आम जन को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ना, ये अध्यक्ष जी उसकी नींव है, ये इसकी फाउंडेशन है। उसमें ग्राहक सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। सर, Second question. सर, ये जो ऑक्शन हुआ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोली लगाई, ऊंची कीमत पे बोली लगाई। ये कोई चैरिटी वर्क नहीं था, ये कोई चैरिटी का काम नहीं था।
जिसने भी ये बोली लगाई वो अपना मुनाफा कमाएगी कंपनी, और उसका जो बोझ है वो कंज्यूमर पे पड़ेगा। तो हमने सुना है, हमने पढ़ा है, ये सब कंपनियां कॉल रेट्स बढ़ाने की फिराक में है। 15% रेट बढ़ाने की उनकी योजना है। उस बारे में सरकार क्या करेगी, क्या कंट्रोल करेगी? दूसरी बात, जो आपने रेवेन्यू की बात की है, वो 2018 से आपको मिलने वाले, जो आपने 1 लाख और 1 करोड़ 10 लाख करोड़ की बात की है, वो 2018 से आपको मिलेगी। लेकिन अभी क्या मिला है आपको, ये भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। थैंक यू। अध्यक्ष जी, अभी तो अपफ्रंट में 32,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा मिला है, ये पूरा स्पष्ट है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, वेबसाइट में है। दूसरे विषय उन्होंने कहा कि एक शंका कि क्या 15% रेट बढ़ जाएगी। अध्यक्ष जी, एक तो कई सालों से हम लोगों ने यह तय किया है कि टैरिफ के बारे में देश में टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई ही टैरिफ तय करेगी। दूसरी जो अनुमान है, जो इतिहास है टेलीकॉम सेक्टर की प्राइस मैकेनिज्म की, यह शंका वाजिब है, इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं। जब जिन्होंने निवेश किया है, क्या उसकी निवेश की मुनाफा वो कमाना नहीं चाहेंगे? क्या इसकी वो कंज्यूमर के ऊपर पासन करना चाहेंगे? ये एक शंका स्वाभाविक है। लेकिन अध्यक्ष जी, ये हम ना भूले कि इस देश में जब टेलीफोन कंपनी अपने काम शुरू किया, एक कॉल पे 17-18 रुपया से ये शुरू हुई थी। आज जब हम टेलीफोन में स्पेक्ट्रम के बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं, उसकी गेटवे बढ़ा कर रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रही है दुनिया में, इस बार सरकार ने जानबूझकर उसको टेक्नोलॉजी न्यूट्रल किया। कोई सीडीएम और जीएसएम की कोई प्रायोरिटी की, कोई किसी को इसको ज्यादा इसको कम, इस प्रकार की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रहेगी। धीरे धीरे शायद ये भी संभव है, ये शंका गलत साबित होकर ग्राहकों को यह भी बात आई है 4G में फ्री टॉकिंग टाइम, बात तो मुफ्त में होगा, सर्विस में पैसा आएगा, यह भी बात सुनने को आई है। इसकी यह शंका शायद अभी प्रीमेच्योर है, आने वाले दिनों में शायद ग्राहकों को और सहूलियत मिलेगी और सेवाएं भी मिल सकता है। श्री दर्दा। चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एयरवेज के ऑक्शन के समय क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया, ये कंडीशन भी इम्पोज की गई कि ग्राहकों के हित की रक्षा की जाएगी? जैसा कि आपने देखा, आपके किटी में करोड़ों रुपए तो आ रहे हैं, मगर साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि कॉल ड्रॉप यानी एक कॉल के को 3-3, 4-4 कॉल हो रहे हैं। उसके बाद उसके वजह से एक पैसा जो है, अगर हमारे पास 20-22 हज़ार करोड़ अगर हमारे कंज्यूमर, तो इसका मतलब प्रति मिनट कितना पैसा उनके किटी में जा रहा है। और साथ ही साथ में जो एड ऑन सर्विसेज के नाम के ऊपर वो कभी 30 रुपए कभी 50 रुपए का बिल भेज देते हैं, तो ये जो सारा कंज्यूमर या उपभोक्ता के ऊपर ये जो दंड हो रहा है, तो क्या इसको प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से सरकार ने कोई व्यवस्था की है ताकि ये इस प्रकार का शोषण जो कर रही कंपनियां वो नहीं कर सके? तो मोनोपोली ना हो, ये ट्राई की प्रमुख जवाबदेही है और सरकार भी उसकी जो ट्राई की भूमिका जो निर्वह करेगी उसको सरकार उसमें भी बंधा हुआ है, कंपनियां भी बंधा हुआ है। बाकी उन्होंने सही कहा, इसीलिए तो इस बार स्पेक्ट्रम के बारे में मैं एक ही उदाहरण अगर उसको दूं, कई सारे टेक्नोलॉजी इशू के साथ जुड़ा हुआ है कि पहले 2100, 1800, 900, 800 मेगाहर्ट्ज की अलग अलग नीलामी होती थी। इसी को एक बड़े बैंडविड्थ के साथ साइमल्टेनियसली नीलामी किया गया है कि इसकी टेक्नोलॉजी सहूलियत रहे, इन्वेस्टर अपने सारे कारोबार करते हुए इस विषय की भी टेक्नोलॉजी साबित हो पाए। कोशिश है कि उसमें से ग्राहकों को दिक्कत ना आए। श्रीमती विजला सत्यनाथ। I would like to ask the Honorable Minister regarding that we have learned that 48,72,027 units of calls have emanated from one telephone line 24371515 in the month of March 2007 alone, which is indicative of the massive multimedia transfer in the underlying connections. Just one of the 323 lines accounted for over 48 lakh call units in March 2007 alone. Almost 49 lakh call units in 1 month has been gone from 323 phone connections. So it has been unlawfully robbed
the BSNL during January 2007 to April 2007. And I want to know that now the BSNL is now under very massive crisis, that this year alone 7,287 crores are lost for BSNL in 2012-13, and in 2011, it is Question, let the related to minister this handle that. question. It What is is your related. What is question? mobile phone airways spectrum in the spectrum alone? I will it not has been- allow I speeches just during question wanted- hour. I just wanted to know. You this just ask year, your question. 10,000 crores every year BSNL is incurring a loss. Is this true or not? I wanted to know. You can just answer the question last Sir, part. this is a altogether separate question. I honor the question, but I will inform, with your permission, I will inform the member, honorable member, separately. Thank you. Shri Ajay Sancheti. मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो स्पेक्ट्रम के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट हुआ है, उसमें मेरी एक जानकारी जानना चाहूंगा कि आजकल कॉल ड्रॉप्स जो हैं सारे शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और जब कॉल ड्रॉप होते हैं तो एक ही बार बात करने के लिए 3-3, 4-4 बार एक ही जगह टेलीफोन्स लगाने पड़ते हैं, तो इसका जो पेमेंट है वो कंज्यूमर को करना पड़ता है। तो जिस तरीके से कंपनियां स्पेक्ट्रम के लिए पैसा दे रही है, क्या वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएगी ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर बोझा न पड़े? सर, ये विषय कई सदस्यों ने इसके बारे में चिंता किया कि मैं सदन को बिल्कुल आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा। स्पेक्ट्रम की मल्टी डायमेंशनलिटी बढ़ाने की यही उद्देश्य है कि इसमें से ग्राहकों को इस प्रकार की दिक्कत आगे ना आए। ये प्रश्न वाजिब है, इसकी विभाग चिंता करेगी। Question number 19. सर 19 विवरण सभा पटल पर रख दिया। Sir, irrigation consumes more than 80% of water resources of our country. In the reply, it has been stated that total area under micro irrigation is 76.23 lakh hectares. Total cultivable land is 615 lakh hectares. So, area under micro irrigation is very less. If we bring more areas under this micro irrigation, we can save more water. Sir, question is, what steps government has taken to promote micro irrigation projects in big way in order to save water, to have good yield and income enhancement? Sir, in the last para of the reply, it has been stated that the fund of rupees 1,000 crores is being provided under the Pradhan Mantri Silence, please. Yojana. माननीय सभापति जी, जैसे कि उत्तर में स्पष्ट है, इस वर्ष से प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए जो 5300 करोड़ रुपए के टोटल बजट से जो 1800 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय को मिला है, उस 1800 करोड़ में से 1000 करोड़ रुपए माइक्रो इरिगेशन के लिए अलग से विभाग द्वारा रखा गया है। इसे अभी इसका अलॉटमेंट प्रदेश सरकारों को किया जाएगा, और सरकार का लगातार इस बात पर ध्यान है, चूंकि माइक्रो इरिगेशन से इसकी फसल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और पानी की बचत भी, एनर्जी की भी बचत है, इसलिए सरकार का ध्यान निश्चित रूप से इस पे है कि माइक्रो इरिगेशन के अंदर कृषि के क्षेत्र में और एरिया को लाया जा सके। Thank you. Second question. Sir, Andhra Pradesh is one of the leading states in the country to cover 11.5 lakh hectares under the micro irrigation, benefiting nearly 10 lakh farmers. And there is a huge potential to be covered under micro irrigation in Andhra Pradesh. To tap the potential, government of Andhra Pradesh requested to provide rupees 420 crores to implementing micro irrigation in 79,900 hectares under National Mission of Sustainable Agriculture. So I would like to know, Honorable Minister, what action the ministry has taken our request. माननीय सभापति जी, जो सिंचाई योजना नई शुरू करने जा रही है सरकार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैसे मैंने बताया, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लान बनने शुरू होंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा, फिर स्टेट प्लान बनेगा, फिर केंद्र सरकार के पास योजना भेजी जाएगी। और इसमें पहली बार 4 मिनिस्ट्रीज मिलकर सिंचाई योजना को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। जैसे ही नए
उसके हिसाब से 1100 ब्लॉक्स में जो पहले काम चल रहा है लगातार माइक्रो इरिगेशन का और सिंचाई योजना, उनको तो हम आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा नए सिरे से प्रदेशों से प्रपोजल मंगाए जाएंगे। जब भी प्रदेश का प्रपोजल आएगा उस पर विचार किया जाएगा। श्री मधुसूदन मिस्त्री। सर, नर्मदा योजना गुजरात की एक बहुत बड़ी योजना है और उसकी बड़ी बड़ी कैनालें भी है तो तैयार हो चुकी है, लेकिन उन कैनालों से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो छोटी कैनाल है उनका अभी तक नहीं कुछ हुआ है। यहाँ पर मिनिस्टर भी गुजरात के हैं। अभी तक तो ऐसा कहा गया था कि केंद्र में दूसरी सरकार है और स्टेट में दूसरी सरकार है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है। करीब 20 साल हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि छोटी कैनालों के द्वारा स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरी है तो आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, इसकी व्यवस्था क्या आप करोगे क्या, या फिर उसको ऐसा ही कहा जाएगा कि ये प्रदेश का प्रश्न है, इसमें हम नहीं गिनना चाहते? क्योंकि नर्मदा में पानी होने के बावजूद, कैनाल में पानी होने के बावजूद पूरे इलाके के इलाके सूखे पड़े हुए। मेरी आपसे विनती है कि मेहरबानी करके इसको जल्दी करवाइए और राज्य सरकार को क्या आप निर्देश दोगे कि छोटी कैनाल है तो करवा के ये ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन शुरू करवाए? आप है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि इस बार जो योजनाएं बन रही हैं वो 4 मिनिस्ट्री इकट्ठा मिला के एक योजना इस तरह की बना रही है कि उसमें जो इरिगेशन का सोर्स है वो भी बन सके, अगर कैनाल्स बनी है कैनाल्स बन सके। हम इसमें मनरेगा का भी यूज कर रहे हैं, मनरेगा का पैसा का जो है, और उसके साथ साथ फिर ड्रिप या स्प्रिंकलर भी हो सके। तो एक इस तरह की योजना है कि जिसमें सारे फैक्टर्स को ध्यान रखा गया। जब तक योजनाएं थी उनमें माइक्रो इरिगेशन बिल्कुल अलग था, इरिगेशन का सोर्स है वो बिल्कुल अलग था, नहर अलग थी, पौंड अलग था। हमने सब मिनिस्ट्रीज को जोड़कर, इसकी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, सबको योजनाओं को जोड़कर इसमें किया है। निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, प्रदेश सरकार ने भी कुछ पैसे का प्रावधान उसमें किया है और जो मदद केंद्र सरकार की तरफ से होगी निश्चित रूप से की जाएगी और पानी वहां तक पहुंचाया जाएगा। श्री पवन कुमार वर्मा। This is an important question in the light of the current agricultural crisis. I want to ask the minister that the question relates to what is to be done to increase the area of micro irrigation. Now we are aware that 64% of our agricultural sector is dependent on the vagaries of the monsoon. We are also aware that only 30% of already sanctioned irrigation projects are actually under implementation, 70% are not. I would like to ask the minister, before we speak of increase, what is the assessment of the functioning of existing projects, the utilization of the existing budget, and allocation of funds that are required for this purpose, and if these funds are sufficient? Thank you. महोदय, मैं माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया, शायद मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सबसे पहला ध्यान उन्हीं योजनाओं पर है जो योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं योजनाओं को दी जाएगी जो योजनाएं इनकम्प्लीट हैं और जिनमें धन की आवश्यकता है। उसके बाद हम नई योजनाओं के बारे में आगे बढ़ेंगे। श्रीमती विप्लव ठाकुर। इन्होंने कहा कि काफी लंबा प्रोसेस बताया कि स्टेट्स में जाएगा, उसमें इतनी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होंगी, फिर इसमें आएगा। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ये ड्रिप और इस स्कीम को जो ये शुरू करने जा रहे हैं, क्या इन्होंने अपने लेवल पर, सेंटर के लेवल पर, अपने डिपार्टमेंट में कोई सर्वे करवाया है? कहाँ किसकी जरूरत है, किस स्टेट्स को ज्यादा दिया जाए या किस स्टेट्स के साथ उसको कामयाब बनाने के लिए उनको आइडेंटिफाई किया जाए? क्या कोई ऐसा इन्होंने किया कि सभी स्टेट्स को जो है उसमें लाने की कोशिश करेंगे? मैं ये जैसे हमारा पहाड़ी इलाका है, उसमें क्या ड्रिप ये इरिगेशन कामयाब हो सकती है या नहीं? क्या कुछ ऐसा इन्होंने सर्वे किया है? सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहाड़ी में स्प्रिंकलर कामयाब है। पहाड़ी में सिंचाई स्प्रिंकलर विधि के द्वारा लगातार होती है। और जो इन्होंने सवाल किया है कि सर्वे हमने कराया है, सर्वे हम नहीं कराएंगे, सर्वे प्रदेश सरकार कराएगी। पहले डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनेगा, डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के साथ पूरे स्टेट का इरिगेशन प्लान बनेगा, वो सेंटर को आएंगे और सेंटर से मदद होगी। ये काम प्रदेश सरकार का है इरिगेशन प्लान बनाने का। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्रीज प्लीज।
Thank you, sir. There is an encouraging growth in horticulture in this country, and the growth in 2013-14 has been 3.2%. But the provisional growth this year is calculated as 2.1%, whereas the target has been kept as 4%. Is the government confident that it will achieve its target for the 2014-15? टारगेट जरूर रखा गया था, लेकिन अभी तक प्रोविजनल जो फिगर्स आए हैं 2.1 तक हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस वर्ष के शुरू में जो सूखे की समस्या थी, पूरे देश में सूखा पड़ा, और उसके बाद ओलावृष्टि और अतिवृष्टि, ये समस्याएं ऐसी थी। उसके बावजूद अगर हम 2.1 पे हैं तो समझता हूँ इन सब समस्या के बावजूद हम शायद 2.1 पे रहेंगे। मैं नहीं समझता कि शायद हम 4% तक पहुंच पाएंगे। Second question. Sir, the horticulture mission has been announced for the northeastern region and the hill states, and many areas has been covered. But in spite that, we see a lot of damage due to lack of marketing, lack of cold storage. Is the government thinking of including the marketing and cold storage into the mission? Thank you, sir. माननीय सभापति महोदय, मार्केटिंग और स्टोरेज पहले से ही इसमें जुड़े हुए हैं। स्टोरेज कैपेसिटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितना भी है काफ़ी कम है, कई स्टेट तो ऐसे जिनमें एक ही कोल्ड स्टोरेज है। और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है, मार्केटिंग का क्वेश्चन अभी समाप्त हुआ है, उसमें मैंने लगातार किया है कि उसमें पूरे देश को ही एक पूरा नेशनल मार्केट हम बनाने जा रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में विशेष रूप से वो ट्रांसपोर्टेशन की है। सरकार का ध्यान उस ओर लगातार है और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाने पर सरकार की लगातार मदद वहाँ रहेगी। डॉक्टर मंगेकर। In relation to this development of horticulture, the answer given by Honorable Minister is expressing the sense of complacence, which is absolutely unacceptable to me. The question is, besides the stagnant share of fruits and vegetables in the world production of fruits and vegetables, two questions are the major questions facing this sector. One is the wastage and the second is lack of value addition. Sir, I want to ask that nearly India being the second largest producers of fruits and third largest producer of vegetables, and 1/3 of fruits and vegetables are wasted and not more than 5% are processed. In order to overcome the agrarian crisis and helping the farmers, will the ministry will give special consideration to increase the value added and not only raw forms, and sufficient and stronger steps to avoid the tremendous amount of wastage of the fruits and vegetables, which is also contributing in a way to inflation during the seasonal variation. Thank you very much. माननीय सभापति महोदय, हॉर्टिकल्चर में करीब 6 से 18% तक लॉस है, और अगर इसे वैल्यू में बात करें तो पूरे देश में करीब 44,000 करोड़ रुपए बैठता है जो लॉस है, जो कि स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से। जहां तक वैल्यू एडिशन की बात माननीय सदस्य ने की है, इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जहां तक मार्केटिंग की बात है, मैं पहले ही बता चुका है, इसमें लगातार प्रयास है, लॉस बहुत ज्यादा है, सरकार का ध्यान लगातार इन लॉस को कम करने पर। शरद यादव जी। श्रीमान, मैं मंत्री जी से जो सवाल ये सब्जी का, फल का, एक बात जरूर है कि ये सारे कोल्ड स्टोरेज और सारी चीज़ें आज सरकार जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ दिल्ली में डटा हुआ विभाग है, कुछ काम आम उसमें नहीं होता है। तो एक तो बात मेरा कहना है कि इस मिनिस्ट्री को मजबूत करिए तो इस मामले को सुलझा सकते हैं। दूसरी बात ये कि किसान सिर्फ यानी कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, और सरकार ने स्कीम बनाई तो वेयर हाउसेज बनाए, उन्होंने ईंट के भट्टे बनाते हैं, कोई दूसरा धंधा उनको आता नहीं।
मैंने उस पर नहीं जाना चाहता उनकी क्या हालत, बुरी हालत है। किसी तरह से कर्ज लेकर के वेयर हाउस बनाते हैं। यहाँ कंज्यूमर अफेयर की क्या कहते हैं उसकी मिनिस्टर बैठी है फूड प्रोसेसिंग की, वो खुद ही जानती है कि किस हालत में है वो डिपार्टमेंट। थैंक यू। आप नहीं आप मेरी बात बोलना ना साहब, ऐसे ना कहिए। अभी तो आपने पढ़ा होगा हाल ही में कि 17 नए मेगा फूड पार्क की सैंक्शन कई हजार करोड़ रुपए से सरकार की तरफ से किया गया है, जिससे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वेस्टेज को रोकने के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और अभी फिलहाल ही में कुछ 1-2 हफ्ते बाद कोल्ड चेन के लिए भी कई हजार करोड़ उसके लिए भी सैंक्शन किया गया है। तो सरकार जो पिछले 10 साल से नहीं हुआ था वो हम 10 महीनों में हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सैंक्शन और इंश्योर करेंगे कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जरूर इनका हो जाए। पहला स्टेप हमने ले लिया है कि सैंक्शन किया और अगला स्टेप इम्प्लीमेंटेशन का भी हम इंश्योर करेंगे कि 4 साल बाद आप जरूर ये कहेंगे कि वेस्टेज घटी है। तो आप ये ना कहें कि मंत्रालय वैसे डिफंक्ट पड़ा हुआ है, पड़ा जरूर था लेकिन उसमें सुधार किया गया है। थैंक यू। डिब्बा बंद है, डिब्बा खुल गया है, डिस्कशन खत्म हो। नहीं मैं यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? नहीं वन मिनट। पुरानी स्कीम है और जब यूपीए का तब की स्कीम है। नहीं मैं मानता हूँ प्लीज। मैं आप शरद जी आपका सवाल खत्म हो गया? नहीं अरे भाई प्लीज सवाल को सवाल की तरफ। नहीं सवाल उनकी तरफ चला गया। नहीं उनकी तरफ चला गया सवाल। तो मेरी जानकारी जो है वो थोड़े समय पहले की है और आपने खुद ही मान लिया कि अब आई है सरकार तो आपने इसमें इस कार्यक्रम को और इस डिपार्टमेंट को एक्सट्रैक्ट किया है और आप खुद ही मान रहे कि पहले डिफंक्ट था। मैं आपसे कहूंगा कि मेरा असली बालियान जी से सवाल है जी कि किसान ने कर्ज लेकर के बैंकों से कई जगह से ये वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। आप जो है वो फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, आप ये बताइए कि जो लोगों ने वेयर हाउसेस कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं उनके बारे में सरकार जो है उसने बनवा तो लिए, राज्य सरकारों ने बनवाए, भारत सरकार ने बनवाए, लेकिन क्या हालत है आपने सेलो बना लिए हैं। यानी इस देश में सेलो बना लिए सर इन लोगों ने, और सेलो में जो वेयर हाउस बना लिए किसानों ने की खेती और जमीन जो है वो कि बैंक जो है वो अटैच कर रहे हैं। तो बलियान जी से मैं कहूंगा कि ये गंभीर मामला है, ये किसानों का मामला है, ये भी इसको ठीक करने के लिए आप जो है वो क्या कदम उठा रहे हैं। तो वेयर हाउस है कोल्ड स्टोरेज है इसको ठीक करने का कैसे उनको किसानों को जो बैंक मिला हुआ उनको कर्ज दे रहे हैं उनके खेत अटैच किए जा रहे हैं। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, शरद यादव जी का सवाल निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा वो जमीनी हकीकत है। और वेयर हाउस हो या कोल्ड स्टोरेज, जो नेशनल मार्केटिंग की बात लगातार हम पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं, अगर एक नेशनल मार्केटिंग और ई मार्केटिंग शुरू हो जाती है तो गवर्नमेंट जो कोल्ड स्टोरेज जो वेयर हाउसेज हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे देगी कि सर्टिफिकेशन उनकी की जाएगी और उसके माध्यम से अगर कोई भी किसान कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस में अपना सामान रखता है उसके बाद ई मार्केटिंग के द्वारा उसकी बिक्री हो सकती है। मुझे उम्मीद है जैसे नेशनल मार्केट बनेगा, ई मार्केटिंग शुरू होगी तो इन सबका सदुपयोग ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। श्री आनंद शर्मा। अभी पहले सदन में ये बात कही गई माननीय मंत्री महोदय से कि भारत में जो फल का और सब्जी का उत्पादन है उसको मद्देनज़र रखते हुए फूड प्रोसेसिंग की और कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता जिस पे अभी चर्चा में आई, क्योंकि कम से कम 35% से 40% फसल खराब हो जाती है, ना वो बाज़ार में आती है ना वो देश के बाहर निर्यात की जा सकती है। इसीलिए पहले भी सरकार ने और अभी भी निरंतरता है इसमें सब्सिडी देना, इसमें कर्जा देना, साथ में राज्यों को भी समर्थन देना और 46 फूड प्रोसेसिंग पार्क्स का स्थापना करना। मेरा एक प्रश्न कि इसमें निवेश के लिए कि देश की पूंजी भी लगे और विदेश की पूंजी लगे और टेक्नोलॉजी लगे, बहुत सोच समझ के एक निर्णय किया गया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मल्टी ब्रांड रिटेल में, वो नोटिफाई कर दिया गया था। उस पे आपकी सरकार का क्या मत है? उस पे चुप्पी है आपकी सरकार की, उसके हम जवाब जानना चाहते हैं। थैंक यू।
आनंद शर्मा जी बड़े सीनियर नेता हैं और उन्होंने मुझसे ऐसा सवाल पूछा है जिसका शायद डायरेक्ट जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं माफी चाहूंगा इस सवाल का जवाब दे। Thank you. Question number 21. Questioner not present. Let the answer be given. FDI को मैं क्या बताऊं? सर आपको पढ़ दिया गया है। Shri Rapolo. The broadness of the question is about the relaxation in food procurements due to the seasonal complications, wherein the answer has been just confined to wheat and only to a few states. There is distress all along in Maharashtra, Telangana and several other states due to this unseasonal climatic complications, which is against to the monsoon. These are the anti-monsoon rains. And your answer just pertains to wheat only. Why you are not looking after other food products and other food agrarian commodities? I would like to know about the information of the complications in Maharashtra and Telangana as well. Thank you, sir. सर, जो मेन प्रश्न है वो है, इन्होंने दिया है कि क्या सरकार खाद्य खरीद मानकों में कोई छूट देने की योजना बना रही है, और यदि हाँ तो इसके कारण क्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तो जो मानक हैं छूट के वो सभी फसल में, अधिकांश फसल में हैं। गेहूं में भी हैं, धान में भी हैं, चावल में भी हैं, बारले में भी हैं, ज्वार में भी हैं, बाजरा में भी हैं, मक्का में भी हैं, रागी में भी हैं। इन सब में है, अलग अलग मानक उनका तय है। अब प्रश्न उठता है कि जो छूट का अभी जो मामला है वो मेन प्रॉब्लम है गेहूं का। तो जहाँ जहाँ जो फसलें नष्ट हुई है वो गेहूं का फसल क्या कहते हैं कि नष्ट हुआ है। तो उस गेहूं के फसल प्लीज तो उस यदि आप कहेंगे, माननीय सदस्य कहेंगे तो मेरे पास में है, जैसे आप गेहूं का है कि जो सिकरे हुए दाने हैं, जो टूटे हुए दाने हैं, उसको 6% तक जो है छूट देना चाहिए। और अभी हमने क्या कहते हैं कि जहाँ जिस राज्यों से हमारे पास में चिट्ठी आई है, हमने 1 मिनट डिले नहीं करते हैं। हम तो उल्टे जाकर के हरियाणा में गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जल्दी से भेजो। बिहार से अभी तक नहीं आया है, हम बिहार में गए, राजस्थान में गए। तो जिन जिन राज्यों में हुआ है किसान के ऊपर में आपदा, तो हम तो सब राज्यों से कह रहे हैं, एक दिन में सर आता है, रात में हम सवेरे में मानक में छूट दे देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने 6% के अगेंस्ट में 10% छूट दिया है, राजस्थान में 9% तक छूट दिया है, ये जो सिकरा हुआ दाना और टूटा हुआ दाना है। हरियाणा में 6% के अगेंस्ट में 10% दिया है, उत्तर प्रदेश में 6% के अगेंस्ट में 10% दिया है, पंजाब में 6% के अगेंस्ट में 10% दिया है। जो लस्टर लॉस है, चमकहीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं उसके बावजूद भी किसानों के ऊपर में जो त्रासदी है, हमने गुजरात में 25% तक दिया है, मध्य प्रदेश में 40% तक दिया है, राजस्थान में 50% दिया है, हरियाणा में 5 जिला में हमने 90% दिया है, 6 जिला में 50% दिया है, उत्तर प्रदेश में 50% दिया है, पंजाब में 50% दिया है। तो इसलिए जो है, इसलिए महाराष्ट्र तेलंगाना की, मतलब महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो बात है, वहां से हमारे पास में कोई डिमांड ही नहीं आया है। थैंक यू। आप डिमांड भिजवाइए, हम आपका कर देंगे। थैंक यू। श्री बलविंदर सिंह बुदर। वेरी गुड। मैं ये जानना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब से, अभी इन्होंने कहा कि पंजाब में हमने जो वैल्यू कट है उसमें 10% की रिलैक्सेशन दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास तो वहाँ कोई पंजाब में लेटर नहीं गया, और हम तो अपनी तरफ से अनाउंस किया, हमारी गवर्नमेंट ने कल कैबिनेट में, कि जो लॉस होगा किसान का हम अपनी तरफ से देंगे। लेकिन आपके पास हमने लेटर भेजा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जहां अश्योरेंस दें कि पंजाब को वो जो हमारा लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना चाहिए। सर, हमने परसों ही जो है पंजाब में 4 दिन पहले हमारे पास में चिट्ठी आया था, परसों हमने उसका क्या कहते हैं यहाँ से भेज दिया, प्रेस को भी कह दिया, वहाँ से कैरो साहब क्या कहते हैं कि मंत्री जी आए थे, उनको भी क्या कहते हैं कि हमने बतला दिया। अब जो दूसरी बात आपने कहा वो दूसरा सवाल है, वो है वैल्यू कट का सवाल है। वैल्यू कट का सवाल का मतलब होता है कि हमने रिलैक्सेशन तो दे दिया, मानक में छूट दे दिया कि चमकहीनता इतना होना चाहिए, टूटा हुआ इतना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमको
जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके मुताबिक उसके कंजम्पशन को भी देखना है। इसलिए नमी वाला मामला है, उसमें हम ज्यादा हमारे हाथ में पावर नहीं है। जो वैल्यू कट का मामला है, वैल्यू कट का मतलब मामला है कि ये अनाज जो खराब हुए हैं उनको एमएसपी के प्राइस पर खरीदा जाए या उनको थोड़ा कम करके खरीदा जाए। तो अभी तक का जितना सरकार ने निर्णय लिया है सबको मैंने देखा है, और जितना होता था उसका हमने 1/4 का मतलब है कि गेहूं में मान लेते हैं, गेहूं में 3 पैसा से लेकर के जो है सिकुड़न और टूटन में और चमकहीनता में 3 पैसा 3 पैसा से लेकर के 7 पैसा प्रति किलो, और जो है क्या कहते हैं कि ये हमने छूट क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि रखा है सिर्फ 3 पैसा है। हाँ, नहीं 3 पैसा हो, आप किलो में देखेंगे 3 रुपये 63 पैसे की क्विंटल है, तो वो हो जाता है 3 रुपये 3 पैसा प्रति किलो। उसी तरीके से 7 रुपया जो है उसमें तो 7 पैसा हो जाता है। तो ये मिनिमम रखे हैं, नहीं रखेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, इधर का सामान उसमें मिला देगा, उधर का सामान उसमें मिला देगा। और हमको इस बात का खुशी है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पंजाब की सरकार को कि पंजाब की सरकार ने कहा है कि जो उसमें से एक्स्ट्रा पैसा 10-20 करोड़ जो लगेगा वो अपने खजाने से दे देंगे। और हम लोग ने जो बात किया है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हमारी सबसे बातचीत हुई है, हरियाणा के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां हम बात नहीं किए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इतनी बड़ी विपदा पड़ी है और इतना सारा का सारा चीज हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो राज्य सरकार भी कुछ योगदान करे। थैंक यू श्री सीपी नारायण। Whether the government is planning to make any relaxation. The question is not what the relaxation that have already been made. In the context of the unseasonal rains and the climate change that has come into existence. So we have to expect such things again and again. So will the government proclaim certain change in norms instead of the minister now answering, not in the written answer, now he is orally answering some of these things to different states. Will the government prepare a different set of norms in the new situation so that the farmers will get the benefit of it? I am saying this, we should not relax the standards for the preservation of food, that we have to keep. But keeping that, what kind of relaxation we can give to the farmers, that is the question. Will the government, instead of the minister going to state and saying their concessions after concessions, will you make a general statement on these things? Thank you. सर, इनका सवाल जो है वो कृषि मंत्रालय से है, और कल हमारे माननीय सदस्यों ने मंत्री ने जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी घोषणा किया है कि जहां कहीं इस तरह की आपदा हुई है तो पहले जो मानक बना हुआ था वो 50% डैमेज के ऊपर में मानक था, तो अब उसको घटा करके 33% भी जहां क्षति हुई है उसको केंद्र सरकार मुआवजा देगा, और मुआवजा की राशि जो है उसको 1.5 गुना पहले से 1.5 गुना कर दिया गया है। चूंकि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ स्टैंडर्ड में जो है हमारा जो मंत्रालय है उसका काम है, स्टैंडर्ड में आप रिलैक्सेशन किए हैं कि नहीं। जैसे ओला के कारण से, बारिश के कारण से गेहूं सुकर गया, टूट गया या चमकहीनता हो गया, उसमें सरकार ने खरीदने में कोई रियायत दी है कि नहीं दी है, इससे संबंधित है। और उस पर हमने कहा कि हाँ हमने रियायत दिया है, और इतना मैक्सिमम रियायत दिया है जितना अभी तक कभी नहीं किया गया है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22। Sir, question number 22. Let the question be answered. Sir, time is very short, so I will try to collapse my two supplementaries into one. And ask the minister that, you see, in his reply, he has not clarified what is the likely deadline for the completion of the project, and that deadline cannot be fixed till such time a long-term gas supply contract is entered into. And since no gas supply contract has been entered into, can he identify the possible deadline, and then when the productions will start? How will we bring it to India in view of the various sanctions that are already in force against Iran? Thank you. Sir, the issue is in preliminary negotiations, because we all know that there are
sanctions of US, UN and European Union on the I'm afraid Iranian, question hour is over. The House is adjourned till 2:30 p.m.